Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to English with Ikram. In today's session, I will discuss some very important MCQs based on literature again. I have discussed all English grammar, language and linguistics, phonetics and phonology, morphology, semantics, and some MCQs from syntax as well. And then I started literature, and literature I have discussed MCQs based on figures of speech, based on some general concepts of poetry, history of English literature, and today again some MCQs based on English literature. And this is a series of KPPSC, PPSC, FPSC जितने भी कमीशन के लेक्चरशिप और एसएस इंग्लिश के टेस्ट होते हैं उनके लिए जो एक प्रिपरेशन पैकेज है ये उस सीरीज़ का आज एक नया सेशन. And in today's session I will discuss MCQs based on the work of some very popular writers, either poets or novelists or dramatists. जो मशहूर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो मशहूर पॉपुलर राइटर्स हैं उनके वर्क पे बेस्ड आज के MCQs होंगे. Watch this video till then. You are going to learn, you are going to practice some more MCQs, and these MCQs are very much important from your test point of view. आपका जो कमिंग टेस्ट है इधर लेक्चरशिप का या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का, KPPSC का, KPK कमीशन का या पंजाब का या फेडरल का, ऑलमोस्ट टेस्ट सेम ही होता है बिकॉज द सिलेबस इज़ सेम. आपका सिलेबस क्या है बार बार बता चुका हूँ, इंग्लिश ग्रामर प्लस लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यही आपका सिलेबस है और इसी में से आपके MCQs आएंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. नंबर 1, of which poet was it set? This is a statement about a poet. Even if not a great poet, he is certainly a great something. That's a statement about a person. The options are T.S. Eliot, Rudyard Kipling, Cummings or Brooke. Of which poet was it set? The right option is Rudyard Kipling. रुडियार्ड किपलिंग के बारे में ये कहा गया कि अगर वो पोइट ना भी होता, ग्रेट पोइट ना भी होता, तो वो कोई ग्रेट चीज़ ही होता. दिस वाज सेड अबाउट रुडियार्ड किपलिंग. मैं इस स्टाइल से MCQ डिस्कस करता हूँ. आप खुद स्टडी करें, चीज़ें जहन से निकल जाती हैं. तो मैं इसलिए इस स्टाइल से थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बना के आपके लिए डिस्कस करता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए. जब आप पेपर पे बैठें और इंशाल्लाह इनमें से कोई MCQs आए तो फ़ौरन आपको क्लिक करा कि ये सारी क्राम की वीडियो में मैंने ये देखा था, ये ऑप्शन बताया था, फ़ौरन आपके जहन में वो कैसेट वो रील जो है वो सामने आ जाएगी. तो दैट्स वाई आई डिस्कस इन दिस स्टाइल. नेक्स्ट, Sassoon and Brooke wrote what kind of poetry? These are the poets Sassoon and Brooke wrote what kind of poetry? Options are light words, romantic, political style और war poems. ये इनकी यूनिकनेस इसीलिए है कि because these two poets wrote different sort of poetry and the right option is war poems. अब देख भी लिया आपने, सुन भी लिया, तो ये ऑप्शन आपको कभी भी नहीं बोलेगा. कौन कौन से दो पोइट्स? ससून एंड ब्रूक. आपके सामने पेपर में आया है ये MCQ, ससून एंड ब्रूक. जो ही आप पढ़ेंगे फ़ौरन आपको मैं याद आऊँगा, मेरी ये वीडियो याद आएगी. ये सारी क्राम डिस्कस दिस MCQ. ऑप्शन क्या था इनमें से? लाइट वर्ड्स, रोमांटिक, पॉलिटिकल स्टाइल. ओ यस, इट्स वॉर पोएम्स. सर ने बताया था कि वॉर पोएम्स, दिस इज़ देयर यूनिकनेस. They wrote about war poems. Next, what is a funny poem of 5 lines called? 5 lines की जो बड़े से funny poem होती है उसको क्या कहते हैं? Quartet, limerick, sextet or palindrome? Again, very interesting and for some different thing. Funny poem of 5 lines, and this is called, the right option is option B, limerick. Limerick or limerick. Next, what is the title of the poem that begins thus? Poem जो start इस तरह होती है, what is this life if full of care, we have no time to stand and stare. That's a very popular poem that starts with this line. The name of the poem is Comfort, Leisure, Relaxation, Tranquility.
Now here the right option is option B, Layer. Layer is the poem that starts with this line. What is this life is full of care. We have no time to stand and stare. Right? Next. Which of the following are Thomas Hardy books? Which of the following are Thomas Hardy books? Thomas Hardy की इसमें से कौन सी बुक्स हैं? The Poor Man and the Lady, The Return of the Native, The Colchi, Solity, none of the above. The options are The Poor Man and the Lady, The Return of the Native, या Solity और none of the above. इसमें से कौन सी जो वो टॉमस हार्डी की बुक है? तो ऑप्शन इज ऑप्शन ए, द पुअर मैन एंड द लेडी. दैट्स द बुक ऑफ टॉमस हार्डी. नेक्स्ट, वेयर डिड चॉसर बेरी? चॉसर कहाँ दफन हुआ? वेयर डिड चॉसर बेरी? इट्स बेरी नॉट बरी. वेस्टमिनिस्टर एबे, Kent Church, Chapel at Windsor, none of the above. And the right option is Chaucer, Geoffrey Chaucer was buried at Westminster Abbey. The right option is option A. Next, a poem with no meter or rhyme is called lyric, free words, narrative, none of the above. A poem with no meter or rhyme, that is called free words. The right option is option B, it's free words. A poem that tells a story with plot, setting and characters. ऐसी poem जिसमें plot भी होता है, setting भी होती है और character भी होता है, ऐसे characters भी होते हैं, ऐसी poem को कहते हैं lyric, free words, narrative or none of the above. And here the right option is option C, narrative. Narrative is a poem that tells us a story with a plot, setting and characters. Next, a comparison of unlike thing without using a word of comparison such as like or as is, the options are metaphor, simile, personification, none of the above. I have already discussed all the figures of speech and some MCQs based on these figures of speech. So here the right option is metaphor. Metaphor is a comparison of two unlike things without using these word of comparison as such as like. And we use these word of comparison in simile. Next, applying human qualities to non-human things. Again, it's a figure of speech, literary device. This is personification, novatopia, alliteration, none of the above. Applying human quality to non-human things. And this is in English literature, this is called personification, when some inhuman things are given the features of human. If your concept about figures of speech is not clear, you can watch my video, detailed video on figures of speech in the same playlist, in the playlist of literature. Literature की playlist में मैंने जितने popular figures of speech devices हैं डिटेल के साथ डिस्कस किए और इसी playlist में KPPSC की playlist में मैंने figures of speech पे based MCQ डिस्कस किए. From which language the name Chaucer has been driven? Chaucer का word किस language से है? It's French, it's Latin, Italian or English? And the right option is it's French. The word Chaucer has been driven from the French language. Chaucer's Franklin was guilty of which sin? Chaucer's Franklin, he was guilty of sin, lust, corruption, theft or gluttony. The right option is Chaucer's Franklin was guilty of gluttony. Gluttony means eating too much. बहुत ज़्यादा खाना, बिसियार खौर उर्दू में कहते हैं, पेटू, ज़्यादा खाने वाला. चार्ल्स फ्रैंकलिन साहब भी ज़्यादा खाते थे, इसलिए इसके बारे में कहा गया कि वॉज गिल्टी ऑफ ग्लटनी. Aldous Huxley was a poet but was better known as what? Aldous Huxley was a poet
but he was known better as what? As a politician, as a dramatist, as a novelist, as architect. Though he was a poet, but he was better known as novelist. Option C is the right option. Now, this will remain in your mind that Aldous Huxley, although he was a poet, but he was better known as novelist. Next, how old was Rupert Brooke at the time of his death? How old was Rupert Brooke at the time of his death? 24, 31, 21, 28. He was 28 when he died at a very young age. John Keats के बारे में भी कहा जाता है कि he died at the age of 24 and same is the case with Percy Shelley, B.P. Shelley, वो भी 28 की एज में उसकी डेथ हुई थी. Which figure of speech is it when a statement is exaggerated in a poem? जब किसी स्टेटमेंट को एग्जिजरेट करके बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है उसको फिगर्स ऑफ स्पीच में लिटरेरी डिवाइसेस में क्या कहा जाता है? ओनोमोटोपिया, मेटोनमी, एलिट्रेशन और हाइपरबली. When a statement is exaggerated, this is called option D, hyperbole. This is hyperbole. Which figure of speech is it when a statement is exaggerated? Yes, it's odd. The next one is, what is a sonnet? A poem of 6 lines, a poem of 8 lines, a poem of 12 lines, a poem of 14 lines. This is one genre of poem, genre of poetry, sonnet, and this is a poem of 14 lines. Which is not a poetry form? Out of these 4 options, which is not a poetry form? Epic, tale, ballad, sonnet. इस पे कौन सा ऑप्शन है जो पोइट्री की काइंड में नहीं आता? दैट इज ऑप्शन बी, टेल. दैट्स अ फिक्शन स्टोरी. बाकी एपिक, बैलेड एंड सोनेट ये सारे पोइट्री की फॉर्म्स हैं. मैंने डिटेल से सारी डिस्कस की हुई हैं. सोनेट क्या है, बैलेड क्या है, एपिक क्या है, ये सारी डिटेल से डिस्कस की हुई हैं. इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो यू कैन वॉच इन द प्ले लिस्ट ऑफ लिटरेचर. The next one is, which of the following is not a work of John Keats? Out of these 4, which one is not a work of John Keats? Endymion, To Some Ladies, To Hope, None of the Above. तो इसमें 3 ऑप्शन ये हैं, Endymion, To Some Ladies, टू होप और नन ऑफ द अबव. इसमें से कौन सा है जो जॉन कीट्स का वर्क नहीं है? तो इस सारे जॉन कीट्स के हैं, तो नन ऑफ द अबव इज़ द राइट ऑप्शन, बिकॉज ऐसा कोई नहीं है जो जॉन कीट्स का वर्क ना हो. ऑल दिस पोएम्स हैव बीन रिटन बाय जॉन कीट्स, माय फेवरेट. शेक्सपियर कंपोज मच ऑफ हिज प्लेस इन व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्ड्स? आई थिंक आई हैव डिस्कस ऑलरेडी दिस MCQ व्हेन आई डिस्कस शेक्सपियरियन टाइम. शेक्सपियर के वर्क में मैंने कुछ MCQ डिस्कस किए थे, तो वहाँ मैंने ये डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी. शेक्सपियर कंपोज मच ऑफ हिज प्लेज इन व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्ड्स? लिटरेटर वर्ड्स, सोनेट फॉर्म, iambic pentameter, dactylic hexameter. So here the right option is he has composed all of his work in iambic pentameter. iambic pentameter क्या होता है इसको भी मैंने लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर डिटेल से डिस्कस किया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं. विच पोइट इज कंसिडर्ड अ नेशनल हीरो इन ग्रीस? कौन सा पोइट है इसको ग्रीस के अंदर नेशनल हीरो तस्वर किया जाता है? जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, सोलन और सेफू. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, लॉर्ड बायरन. लॉर्ड बायरन इज कंसिडर्ड अ नेशनल हीरो इन ग्रीस. The last option of the session is, I think I have discussed more than 20, 22, 23 maybe. तो मैं वीडियो को जानबूझ के लेंथी नहीं करता, then it becomes a bit boring and you don't watch long videos. In next video, I have told you already in my last video, I think
1 week ago that I will discuss MCQs based on literature, every era, every period and every different poets and different dramatists. तो ये सीरीज़ अब चलती रहेगी. टेस्ट क्योंकि थोड़ा लेट हो चुका है लेक्चरशिप का, बाकी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो तैयारी ऑलरेडी हो रही है वो तो वही चीज़ें वही सेम चीज़ें हैं लिटरेचर के अंदर, लेकिन लेक्चरशिप का टेस्ट डिले होने से ये टाइम मिल गया है तो मैं वापस आऊँगा फिर लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स पे, ग्रामर पे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं लिटरेचर के वो मैं डिस्कस करता रहूँगा. तो हाउ मेनी लैंग्वेजेस डिड टॉलेस्ट चॉसर नो? 2, 4, 1 and 5. And the right option is option B, 4. He knew 4 languages. These were some very important MCQ that I discussed today, and I hope that you will watch this video again and again for your practice. I told you that MCQs is all about practice, and don't go for books, don't ask for books. Many students ask me that just recommend books. बुक्स से स्टडी करना, दिस रोट लर्निंग जो हम इसके आदी हो चुके हैं, क्रैमिंग के रटा मारना, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. जस्ट स्टडी योरसेल्फ. एंड एज रिगार्ड इंग्लिश ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक्स, दैट्स टोटली योर कॉन्सेप्चुअल, दैट्स टोटली बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट. आपका कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जहाँ से जिस बुक से मर्जी MCQs आए, नो प्रॉब्लम फॉर यू. इसी तरह आपके फोनेटिक्स का आपका कॉन्सेप्ट है, आपको पता है वावल्स क्या हैं, साउंड्स क्या हैं, शॉर्ट वावल्स क्या हैं, लॉन्ग वावल्स क्या हैं, मिनरल आर्टिकल क्लॉजेस क्या हैं, फ्रिकेटिव्स क्या हैं, एफ्रिकेट्स क्या हैं, सारी चीज़ें आपको पता है. इस तरह सिमेंटिक्स में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ मीनिंग्स पता है, सारी चीज़ें मॉर्फोलॉजी, मॉर्फीम, फ्री मॉर्फीम, बाउंड मॉर्फीम, कॉन्सेप्ट है, आपको ये चीज़ें क्लियर हैं सारी. मिनोटोमी, सिनोनिमी क्या है, एंटोनिम क्या है, होमोफोन क्या है, ये पता है. अब MCQ जिस बुक से मर्जी आए, इट डजंट मैटर फॉर यू, इट शुड नॉट बी मैटर फॉर यू. हम बस बुक्स के पीछे पड़े रहते हैं, बुक्स हैं बस हम देखते जाए MCQ. तो ये कोई फाइनल बुक नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि पिछले 2 साल पहले तुक्का लग गया किसी बुक से, आपको 5-7 मिल गए तो आप उस बुक के पीछे पड़ जाएं. अक्सर स्टूडेंट व्हाट्सएप पे कहते हैं कि लास्ट ईयर फलां बुक से आए, तो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है फलां बुक से. तो आसान जगह ये है कि जस्ट वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट, फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट. जहाँ तक लिटरेचर का तल्लुक है, दैट्स टोटली योर स्टडी करें, एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करें. जैसे मेरे साथ जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से पहले मटेरियल सेंड करता हूँ, उस पर डिस्कशन होती है, उसको मैं खुद डिस्कस करता हूँ, इस सेक्शंस उनको मैं सेंड करता हूँ, फिर MCQs भेजता हूँ, MCQs अटैम्प्ट करते हैं एक सीक्वेंस के साथ. तो जब आप स्टडी करें उसके बाद फिर MCQs के प्रैक्टिस करें. MCQs इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस. खुद प्रैक्टिस करें, मुख्तलिफ पेपर्स देखें, मुख्तलिफ MCQs की बुक से करें, लेकिन प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन. इस इंशाअल्लाह आपका जो कमिंग टेस्ट है, लेक्चरशिप का टेस्ट कभी किसी टाइम भी हो सकता है. 45 MCQs होंगे. सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए तो डेट पे एक्सटेंड हो चुकी है, वो हो सकता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो इंशाल्लाह. तो उसके लिए तैयारी हमारी लेक्चरशिप का टेस्ट और SS का टेस्ट, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का टेस्ट, जाहिर सी बात है वो लेट होगा. अभी तो 30 सितंबर लास्ट डेट अप्लाई करने की है, नवंबर दिसंबर में जाकर टेस्ट होगा. उसकी इंशाल्लाह तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी. और बाकी जो STO, ASTO एडमास्टर की जो बात करते हैं, उसका सिलेबस भी आपको बता दूँ, पहले मैं बता चुका हूँ. उसमें पेडागोजी ज़्यादा होती है. 40 MCQs फ्रॉम पेडागोजी, मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग, 30 फ्रॉम इंग्लिश एंड 20 फ्रॉम जनरल नॉलेज. ये उसका सिलेबस है. जो लोग उसकी तैयारी करना चाहते हैं, मेरा नंबर आपके पास होता है, स्क्रीन पे होता है, मुझे मैसेज करें. मेरे ग्रुप में आए, मैं तैयारी करवा रहा हूँ, उस ग्रुप में शामिल हूँ. जूम पे क्लास होती है रात को, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशंस होती है, MCQ मटेरियल सब कुछ मैं वहाँ पे सेंड भी करता हूँ, और जूम पे लाइव क्लासेस भी होती हैं इंशाल्लाह. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.